Good morning, everyone. We are reading chapter 16 Nutrition During Special Stage Pregnancy, and our today's topic is digestive problems. Pregnancy can bring with the digestive problems like indigestion, heartburn, flatulence, belching, constipation, and hemorrhoids. There is increased pressure on the stomach because of the size increase of uterus. The release of hormone called progesterone is also high in this stage. This hormone causes softness and tenderness of the muscles, lead to relaxation of intestinal muscles. The प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जैसे कि इंडाइजेशन, हार्ट बर्न होना, पेट का फूल जाना, ब्लैचिंग, डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हेमरॉइड्स हो जाना। और इसके साथ साथ स्टमक पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। इस वजह से स्टमक पर एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, हाई स्टेज पे पहुंच जाता है। इस वजह से मसल्स में सॉफ्टनेस और टेंडरनेस आ जाती है ताकि इंटेस्टाइनल मसल्स को रिलैक्सेशन मिल सके। Peristaltic movement of the intestine slow down. The food cannot move forward and stays indigested in the stomach for 40 to 48 hours. This causes indigestion. Sometimes the food moves from stomach into the food pipe, and this causes heartburn and irritation. The rate of reabsorption of water in the large intestine increased, due to which the stool is dry. There is difficulty to excretion due to lesser muscular activity. Leads constipation. The raised level of blood volume during pregnancy causes veins to swell. Dry faces exert pressure on inner lining of rectum and repeats when hard stool is passed. The blood vessels leads to hemorrhoids. पेरिस्टालिक मूवमेंट के कम हो जाने से इंटेस्टाइन स्लो डाउन हो जाता है, तो खाना मूव नहीं कर पाता और इस वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो स्टमक में ही 40 to 48 आवर्स तक के लिए रह जाता है। तो ऐसे में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और वो जो खाना है बिना डाइजेस्ट हुआ वो पेट में इधर उधर घूमता रहता है और फूड पाइप तक आ जाता है। इस वजह से हार्ट बर्न और इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो इंटेस्टाइन में खाना काफ़ी टाइम के लिए जमा हुआ रह जाता है। इस वजह से स्टूल भी ड्राई होता है और एक्सक्रिएट करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। The following changes should be made in the dietary system to reduce these digestive problems. Drink lots of fluids, water, fruit juices, soften stool and keep digested waste passing through the bowel. खूब सारा लिक्विड लेना चाहिए, जैसे कि वाटर, फ्रूट जूसेस। इससे स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसे पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको एक्सक्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Second, eat fiber rich foods. Certain foods are especially good for keeping stool soft and make sure that pass easily through the bowel.
These foods include many of the highly nutritious food recommended for a healthy diet during pregnancy: fruits, vegetables, whole grains and legumes, dried beans and peas. सेकेंड पॉइंट है कि फाइबर रिच फूड खाना चाहिए जो कि स्टूल को सॉफ्ट रखता हो और उसे इजीली एक्सक्रिएट किया जा सके। ये जो फूड आइटम्स चूज़ किए जाते हैं ये हाईली न्यूट्रिशियस होने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेगम्स, ड्राइड बीन्स और पीज। थर्ड, don't take food in one sitting. Increase frequency of food intake by 5 to 6 times a day. एक बार में बैठ के एक साथ पूरा खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाना पूरे दिन में 5 to 6 टाइम खाते रहना चाहिए। फोर्थ, ड्रिंक लेमन जूस in lukewarm water before going for डिफेक्शन। डिफेक्शन के लिए जाने से पहले गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। फिफ्थ, रेगुलरिटी इन डाइट एंड टाइम ऑफ डिफेक्शन इज मस्ट। डाइट के टाइम में रेगुलरिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ, एक्सरसाइज not only keep your muscles in shape, it also boosts blood circulation and supplies more oxygen to all organs, included the bowels, to help them perform their job more efficiently. मतलब एक्सरसाइज ना बॉडी की शेप को ठीक से रखता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बूस्ट करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है सारे ऑर्गन्स को, ताकि वो ठीक तरीके से अपना काम कर सकें। नेक्स्ट, लाइट वॉक इन फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग हेल्प्स। सुबह सुबह खुली हवा में हल्की वॉक लेना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। थर्ड पॉइंट इज एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड ओडेमा। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1 to 2 liters in addition to increase body weight in pregnancy. ब्लड के टोटल अमाउंट में भी इंक्रीज़ हो जाता है 1 to 2 liters, तो इस वजह से बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है। It causes hemodulation and there is reduction in hemoglobin level. ये हेमोडुलेशन का कारण बनता है और हीमोग्लोबिन का लेवल कम कर देता है। The hemoglobin level of the blood falls from normal values 12 to 14 grams per 100 ml. In this case, when hemoglobin level is below 11 grams by 100 ml, the woman is considered to be in the state of anemia. Sometimes this level falls up to 7 to 8 grams per 100 ml, and this severe anemia has a bad effect on the nutritional level of the woman and the development of a child. तो हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में से गिरने लगता है, कम होने लगता है। नॉर्मली ये 12 से 14 ग्राम्स होना चाहिए पर 100 ml पे, लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन का लेवल गिर जाता है ये 11 ग्राम्स रह जाता है पर 100 ml पे। तो ऐसे में एनीमिया मान लिया जाता है कि जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो इसको एनीमिया कहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जब लेवल 7 to 8 ग्राम्स पर 100 ml रह जाता है, तो इसको सीवियर एनीमिया कहते हैं। ऐसे में बहुत बुरा असर होता है प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बच्चे पे, उनके डेवलपमेंट पे। Increased blood volume increases the burden of blood circulation on the heart. ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट पे बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स ऑल्सो
हैव टू कैरी मोर ब्लड सो टू कॉप अप विद द सिचुएशन। इसलिए ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको भी ज़्यादा ब्लड कैरी करना पड़ता है इस सिचुएशन के साथ कॉप अप करने में। ब्लड वेसल्स स्वेल अप बट देन प्रेशर ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेज इन द वेन्स। ऐसे में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, क्योंकि उनसे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे में ब्लड का प्रेशर वेन्स पे भी बढ़ जाता है। दिस कॉजेज़ प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। इंक्रीजिंग वेट ऑफ यूट्रस कॉजेज़ प्रेशर ऑन वेन्स एंड दिस ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्लड फ्लो इन द लोअर बॉडी पार्ट्स। जब यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है तो वेन्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड का फ्लो जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट में बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि लेग्स फिट कॉजिंग फ्लूइड फ्रॉम द वेसल्स कम आउट द accumulates in tissues and enter circular part resulated edema. Gradually it spreads to other body parts as face, hands, etc. Doctor should be consulted if blood pressure pressed for long time. ब्लड के फ्लो के अचानक बढ़ जाने से बॉडी के निचले पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे बॉडी के निचले पार्ट में ओडेमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और ग्रेजुअली ये बॉडी के और हिस्सों में भी फैल जाती है, जैसे कि फेस, हैंड्स। तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है अगर लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर बना रहता है। रेगुलर इंटेक ऑफ फूड रिच इन आयरन इज़ मस्ट टू डील विद एनीमिया। अगर रेगुलर खाने में आयरन लिया जाए तो एनीमिया की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। There should be regular intake of iron and folic acid pills given by the doctor according to the medical instructions. इसके अलावा खाने में आयरन को शामिल करना ज़रूरी है, फॉलिक एसिड को शामिल करना ज़रूरी है। आयरन और फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, जो पिल्स दी जाती हैं, उनको मेडिकल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सॉल्ट इन फूड इन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड इन्फ्लेमेशन। अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो ऐसे में नमक कम कर देना चाहिए खाने में। Cramps in legs. Sometimes cramps experienced the legs during pregnancy. This may be due to low intake of calcium because of calcium requirement of the fetus are very high, and this extra calcium not consumed by women's daily diet. In such a condition, calcium and vitamins tablet referred by doctor can be consumed to provide relief. कई बार प्रेगनेंसी टाइम में लेग्स में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और ये बेसिकली कैल्शियम की कमी से होती है, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी टाइम में मदर और फेटस दोनों को। तो ऐसे में एक्स्ट्रा कैल्शियम जब खाने में कंज्यूम नहीं किया जाता, उसकी डेली डाइट में कंज्यूम नहीं किया जाता, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर जो कैल्शियम और विटामिन्स की टैबलेट्स सजेस्ट करते हैं उन्हें प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सके। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।